जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। Morning everyone, my name is Megha Dayani and I am your science teacher. We have reached in the second session of chapter number 9. In the last class we have learned about the word soil texture. Let us learn in detail what is the meaning of soil texture. It actually refers to the composition of the soil in terms of the size particles. साइज के पार्टिकल्स के हिसाब से soil texture डिफाइन किया जाता है कि कितने परसेंटेज वो पर्टिकुलर साइज पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब कितना परसेंटेज क्ले है, कितना परसेंटेज सिल्ट है, सैंड है. डिपेंडिंग ऑन दैट soil texture can be defined. So on the basis of that, soil texture is divided into 12 textural classes, which is sand, loamy sand, sandy loam, loam, silt loam, only silt, sandy clay loam, and rest all are mentioned on the right side rectangle box. So these are different kinds of soil texture. And नीचे जो है वो texture triangle बोला जाता है. But this is not there in your syllabus. This is just for reference. No questions will come based on this triangle. Okay. Percentage are mentioned on all the three sides of the triangle, and depending on those percentage, you have to connect the lines which are present inside the triangle where all the three lines will intersect. That is the texture of your soil. Okay. Components of soil, we know in a soil 45% of mineral matter is present, means 45% of sand, silt and clay is present. 5% organic matter is there, means in this 5% all the humus comes, all the organisms, means those all are living in the soil. And the rest 25% is air and 25% is water. So these all are the components of the soil. Let us now learn about the properties of the soil. The first property of the soil is percolation rate of water in the soil. Percolation rate मतलब क्या होता है? Percolation rate of water मतलब क्या? जब कभी भी आप soil के अंदर water pour करोगे तो some water will get absorbed in the soil. The rest of the water will pass through different layers of soil. Now, the rate at which the water is percolating or moving toward the soil, that is called percolation rate. जितना ऑब्जर्व कर लिया वो तो ठीक है, फिर बाकी का बचा हुआ जो पास हो रहा है ना, तो कितने टाइम में कितना पास हो रहा है, दैट इज द percolation rate. Okay. So something like this, see you are pouring water, so some of them would be absorbed by the soil and rest will get percolated. Let us do one activity to find out how fast the water passes down the soil. For that you need to take one hollow cylinder or a pipe or a small tin can and 2 cm deep आपको उसको अंदर डाल देना है. फिर उसमें धीरे धीरे आपको 300 ml जितना पानी डालना है. And you have to observe. See something like this. Soil के अंदर आप थोड़ा सा डीप एक कंटेनर डिग करके अंदर डाल दीजिए. Yes, and then you have to pass water, 300 ml of water you have to pour slowly inside it. जब पूरा पानी उस सिलेंडर से पास होके सॉइल में चला जाएगा, पूरा कंटेनर एम्प्टी हो जाएगा, उतना टाइम उसको लगा परकोलेट होने में. सो दिस वे यू कैन फाइंड द परकोलेशन रेट. दिस इज द टेक्निक हाउ यू कैन मेजर द रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉइल. Based on this, sums can be asked and sums can be solved by this formula. First, in the first line only is written percolation rate क्या है, कितना पानी आपने यूज़ किया और वो पानी को पास होने में कितना टाइम लगा. सो अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम. So this way you can find percolation rate. Suppose
इट टुक 30 मिनट्स फॉर 300 ml ऑफ वाटर टू परकोलेट. तो आप 300 को 30 से डिवाइड करोगे, सो आंसर वुड बी 10. सो परकोलेशन रेट क्या हुआ? 10 ml पर मिनट. ओके. परकोलेशन रेट ऑफ वाटर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल में. सबसे ज़्यादा किस में होगा? सैंडी सॉइल में, क्योंकि सैंडी सॉइल में पानी होल्ड करने की कैपेसिटी कम है, तो उसमें पानी जल्दी से पास हो जाएगा, है ना. तो उसमें पानी जल्दी पास हो रहा है तो उसका परकोलेशन रेट सबसे ज़्यादा है. और सबसे कम किस में होगा? क्लेई सॉइल में. ओके. सपोज ये 3 सैम्पल्स आर गिवन A, B एंड C. परकोलेशन रेट का ही एक एक्टिविटी है. टाइम दिए हैं, कितना टाइम ले रहे हैं वो लोग परकोलेट होने में. A, B एंड C सैम्पल आर टेकिंग 25, 20 एंड 10 मिनट्स रिस्पेक्टिवली. ओके. परकोलेशन रेट फाइंड करें. पानी हमने सब में सेम रखा है 200 ml. तो A सैंपल को 8 ml पर मिनट हो गया परकोलेशन रेट, B का 10 एंड C का 20. नाउ विच टाइप ऑफ सॉइल इज विच? यू हैव टू फाइंड. अगर परकोलेशन रेट ना फाइंड करें और सिर्फ टाइम के हिसाब से देखें, फिर भी हम बता ही सकते हैं कि कौन सी सॉइल थी वो. ओके. सो देखो, जिसमें 25 मिनट्स हैं A सैंपल, तो सबसे ज़्यादा टाइम A को लगा है, तो क्लेई सॉइल होगा और उसका परकोलेशन रेट सबसे कम होगा, तो देखो 8 है. 20 मिनट्स लोमी सॉइल, बीच में है ना वो, 25, 10 से कम, तो वो लोमी हो गया, उसका 10 ml पर मिनट परकोलेशन रेट हो गया. सबसे कम टाइम एंड सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट ऑब्वियसली सैंडी सॉइल में होगा. सो योर सैंपल C इज सैंडी सॉइल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मॉइस्चर इन द सॉइल. सॉइल में कितना मॉइस्चर है उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है. उसके लिए आपको क्या लेना है? यू हैव टू टेक 1 बॉइलिंग ट्यूब. एक आपको टेस्ट ट्यूब जैसा लेना है जिसको आपको बॉईल करना है, और उस टेस्ट ट्यूब में आप क्या डालोगे जिसको आप बॉईल करोगे, उसमें आपको 2 चम्मच सॉइल जितना डालना है सैंपल के लिए. एंड देन स्टार्ट हीटिंग इट. यू विल ऑब्जर्व दैट देयर आर वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन दैट टेस्ट ट्यूब और द बॉइलिंग ट्यूब. जैसे ही इवोपरेट होगा, आप हीट करोगे तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, सॉइल के अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो इतनी हीट नहीं है, इसीलिए ऊपर के पार्ट में आपको दिखेगा वाटर ड्रॉपलेट्स. सो थ्रू दिस वी कैन टेल दैट सॉइल मॉइस्चर is present in soil. Moisture is present. What actually the soil moisture is? It is the amount of water present in the soil. Third property, absorption of water by soil. When water is poured over the soil, then some water get absorbed in the soil. Rest passes through the layers of soil. Only little bit of water or whatever amount of water is required, सिर्फ उतना वो absorb करेंगी, बाकी का जो भी extra water है वो तो पास हो जाता है. Now again we will do one experiment which will show the amount of water absorbed by soil. कितना पानी वो लोग absorb कर रहे हैं. तो उसके लिए वापस एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो क्या करेंगे? एक फनल लेंगे प्लास्टिक की, उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर लगा देंगे. ठीक है. फिर हम एक पाउडर्ड सॉइल लेंगे, ड्राई पाउडर्ड सॉइल, जो ऑलमोस्ट वेट में 50 ग्राम होगा, और उसको फनल के ऊपर पोर करेंगे. फिर आपको एक सिलेंडर लेना है जिसके अंदर पानी है ऑलरेडी, उसमें मार्क कर लो कि आपके पास पानी कितना है. फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसको ड्रॉपर की हेल्प से फनल के ऊपर जहाँ आपने सॉइल रखा है उसमें डालो. ठीक है. फिर जैसे ही पानी नीचे ड्रिप होने लगेगा, कुछ इस तरीके से देखो, एक फनल लिया है प्लास्टिक का, उसमें फिल्टर पेपर है और नीचे एक कंटेनर है, और ड्रॉपर की हेल्प से पानी डाल रहे हैं. साइड में देखो एक कंटेनर है जिसका इनिशियल वॉल्यूम 10 ml लिखा है. उधर से आप ड्रॉपर से पानी लेके ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल के सैंपल से पास कर रहे हो. नीचे फनल में से पानी जैसे ही ड्रिप करने लगे, कंटेनर में आ जाए, तब स्टॉप कर दो आप ड्रॉपर से पानी डालना, और ऑब्जर्व करो अभी आपका जो सिलेंडर था जिसमें आपने पानी लिया था उसमें कितना पानी कम हुआ. तो सपोज पहले 10 ml था, अभी 5 ml हो गया. तो सॉइल ने कितना ऑब्जॉर्ब किया? 5 ml जितना ही ऑब्जॉर्ब किया, है ना. तो हमें वॉल्यूम तो मिल गया कि 5 ml जितना पानी ऑब्जॉर्ब किया, पर अगर मुझे परसेंटेज में फाइंड करना हो तो उसका एक फॉर्मूला है विच इज इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम. सो 10 - 5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, कितना वेट था उसका, तो 50 ग्राम वेट था. परसेंटेज फाइंड करना है तो ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी गेट द आंसर 10%. लास्ट वाला लाइन देखना एकदम, 10 - 5 अपॉन 50 × 100 लिखा है. 10 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम. 5 क्या है? फाइनल वॉल्यूम. Okay, 50 is the weight and 100 is for the percentage. Now different soil sample absorbs water in different extent.
डिफरेंट डिफरेंट सॉइल सैंपल अब्जॉर्ब डिफरेंट डिफरेंट करेंगे। जो सैंडी सॉइल है वो सबसे कम वाटर अब्जॉर्ब करेगी, बाकी सारा परकोलेट हो जाएगा। क्लेई सॉइल है वो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी और कम पानी परकोलेट होगा। नाउ लेट अस लर्न समथिंग अबाउट सॉइल एंड क्रॉप्स। डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करेंगे इंडिया में, है ना। कोई पार्ट ऐसा होता है, क्ले सॉइल जहाँ है, लोमी सॉइल जहाँ है, और कोई ऐसी है जहाँ पे सैंडी सॉइल है। तो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट सॉइल प्रेजेंट है। अभी विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करेंगे और सॉइल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लेके आएंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स और जो भी सॉइल के टाइप्स हैं वो हमें कौन सा वेजिटेशन और क्रॉप वहाँ पे ग्रो होगा उस पर्टिकुलर रीजन में, वो इन पे डिपेंड करेगा, उससे हम पता कर सकते हैं। वीट एंड ग्राम, वीट मतलब गेहूँ, ग्राम मतलब चना, ये ग्रो होते हैं क्ले एंड लोमी सॉइल में, ठीक है। सारे सीरियल्स वीट और ग्राम जैसे उधर ग्रो कर सकते हैं। ये सारी सॉइल्स जो हैं ये रिच इन ह्यूमस होती हैं, बहुत ही फर्टाइल होती हैं और वो वाटर बहुत ज़्यादा रिटेन कर सकती हैं। सेकेंड, पैडी और यानी कि राइस, चावल, ये कहाँ ग्रो होंगे, जहाँ पे क्ले ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा और उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मतलब गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, ठीक है। पल्सेस, लेंटिल्स, मसूर और बाकी सारे जो भी पल्सेस है वो कहाँ ग्रो होंगे, लोमी सॉइल में होंगे जहाँ पे इजीली वाटर ड्रेन हो जाता है। कॉटन प्लांट कहाँ ग्रो होगा, जहाँ सैंडी और लोम सॉइल प्रेजेंट होगा, जहाँ पानी तो आसानी से पास हो जाता है पर एयर ज़्यादा होल्ड हो सकती है, विच इज सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट, ओके। नाउ व्हाट इज सॉइल इरोजन? वी नो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। ऊपर की जो लेयर पे जो सॉइल प्रेजेंट है वो किसी ना किसी वेदर के कंडीशन की वजह से वो पूरी डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह पे चली जाती है। सो बिकॉज ऑफ दिस सॉइल इरोजन देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द अपर लेयर ऑफ द सॉइल. The soil erosion is gradually the process of movement and transport of the upper layer of the soil by a particular agents like water, wind, ice and snow. Because of this reason, there will be changes in the soil erosions. This is the reason soil erosion will take place. Okay. Now, topsoil is the most fertile layer of the soil. So, soil erosion causes loss of the fertile land. If soil erosion will take place, obviously the soil which is present at the upper layer will flow away, will go away, its place will be displaced, and as a result, its fertility will also be lost. Okay? Soil erosion, the removal of the land surface by water, wind or ice is known as erosion. वो हमने already देख लिया, है ना? Now plants of the roots which firmly binds the soil. In the absence of the plants, soil becomes loose. Soil obviously यूज हो जाएगी. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को एकदम फर्मली बाइंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल एकदम लूज हो जाती है. अगर नहीं करते, प्लांट्स नहीं होते तो सॉइल लूज हो जाएगी और इसकी वजह से जो भी विंड या तो वाटर आएगा वो अपने साथ साथ सॉइल को लेके चला जाएगा. करेक्ट? Now, erosion of the soil is more severe in the areas of little or no surface vegetation, such as desert or bare lands. So, cutting of the trees and deforestation should be prevented, and efforts should be made to increase the green areas. If you cut the trees, what will happen? Deforestation will take place, no? So, you have to prevent this. Deforestation should be prevented. Deforestation should not take place. You should not cut the trees. Then and then only your area will not be barren. Your area won't become a deserted area. And as a result, your green areas will increase. And soil erosion will also not take place. Okay? Let us learn about soil pollution. This is the pollution that we human beings are creating. As you can see in the pictures also, soil pollution is there. What are its causes and what is the treatment for the pollution of the soil? See, dumping of non-biodegradable substances such as plastic or polythene. These are the causes. Causes में फर्स्ट वाला पॉइंट, जो भी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं जैसे कि प्लास्टिक और पॉलीथीन है, वो सारी चीज़ें हम उधर डंप करते हैं, ये एक उसका रीज़न है. दूसरा, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स कंटेनिंग हार्मफुल केमिकल्स विदाउट ट्रीटमेंट इनटू द सॉइल. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं हम लोग
इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनको ट्रीटमेंट किए बिना ही हम सॉइल में डंप कर देते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, जब कभी भी हम फर्टिलाइज़र, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें जब हम एक्सेस ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। नाउ व्हाट कैन बी डन, हाउ वी कैन ट्रीट दिस। सो फर्स्ट पॉइंट ट्रीटमेंट में देखो, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सारे केमिकल्स हैं, उनको आप पहले ट्रीट कर लो, फिर उनको सॉइल में आप रिलीज करो। तो जैसे एसिड वाली चीज़ें, तो उनको बेस के साथ मिक्स करके फिर डालो तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाएंगी। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द एग्रीकल्चर शुड बी मिनिमाइज्ड। आप एग्रीकल्चरल में पेस्टिसाइड्स और ये फर्टिलाइजर उन सब की कम यूज़ करो, तो क्या होगा, जो भी पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा। रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन्स, इनका यूज़ ही कम कर दो तो थ्रो करने का या तो वेस्ट डंप करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। ओके, सो दीज आर द ट्रीटमेंट्स दैट शुड बी डन and you should be taking care of to reduce the soil pollution. So here we end our chapter number 9 also. Stay happy, stay healthy, learn well, eat well. Thank you so much.